अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारो ये प्याम, ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ये ईद का त्योहार है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا توفیق جے دیوے عمر طیبہ نبا دیواں. خدا توفیق جے دیوے عمر طیبہ نبا دیواں. خدا توفیق جے دیوے عمر طیبہ نبا دیواں. نگاہانو دن راتیں میں روزے تے ٹکا دیواں. نگاہانو دن راتیں میں روزے تے
ٹکا دیواں زلیخا حسین یوسف نو تو بھول جا سے تو بھول جا سے زلیخا حسین یوسف نو تو بھول جا سے تو بھول جا سے کدی تینو او چن عربی جے ایک واری وکھا دیواں کدی تینو او چن عربی جے ایک واری وکھا دیواں نگاہاں نو دن راتیں میں روزے تے ٹکا دیواں کہ یا شبیر نے نانا اے اصغر کی تے اکبر کی کہ یا شبیر نے نانا اے اصغر کی تے اکبر کی جے فرماؤ تے حق دے لئی میں گھر سارا لٹا دیواں جے فرماؤ تے حق دے لئی میں گھر سارا لٹا دیواں نگاہاں نو دن راتیں میں روزے تے اور سب سے پہلے آنے والے تمام مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید کی مبارک پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کو عزت سے زندگی بسر کرنے کا ہنر اور گر عطا فرما دے وہ اوصاف پروردگار ہم میں پیدا فرما دے جو اوصاف صحابہ اکرام اجمعین میں تھے اور ان کی پیروی کریں جنہوں نے غیرت سے جرأت سے ایمان سے زندگی بسر کی اے اللہ ہمیں بھی ان جیسی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما آج کوئی اتنا زیادہ سنجیدہ ٹاپک نہیں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے صرف آپ سے عید ملنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اکثر کہتے ہیں بات کرنے میں لکھنے میں ویسے کہتے ہیں سیاسی اور سماجی لیکن اکثر و بیشتر میں اس بات پہ عجب محسوس کرتا ہوں جب سیاسی کا لفظ اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی سنجیدہ اور درست بات نہ ہو تو میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اجمعین امیر المومنین اور خلفائے راشدین خدا کی قسم اگر یہ افراد سیاست نہ کرتے تو جاوید اسلم ارائیں اور اس کے افراد اس کے ساتھی سیاست نہ کرتے میں سیاست کو ایک انتہائی پاکیزہ ایک انتہائی مقدم ایک بہترین حکمت عملی سے جہاں ماں جو بچے کے لیے سب سے بہترین جو بچے کے لیے سب سے اعلیٰ ترین دل رکھتی ہے پیار اور محبت رکھتی ہے وہ بھی اکثر اکتا جاتی ہے سیاستدان نہیں اکتاتا سیاست آپ کو وہ رستہ دیتی ہے جس رستے میں آپ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنے دین کا اپنے ملک کا اپنے بھائیوں کا نام روشن کر سکتے ہیں ان کو عزت اور آبرو کے رستے پہ چلا سکتے ہیں خریسی افغی جیسے گنڈوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو سکتے ہیں مساجد میں گھسنے والے گنڈوں کو روکنے کا دم خم رکھتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ سب سیاستدان بن جائیں اور ایمان والے پاکیزہ سیاستدان بن جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے یہ جو خوف و ہراس کی فضا ہے اس کو توڑ سکیں
इलेक्शन कैंपेन का भी हम आगाज कर रहे हैं। ईद की खुशियों के साथ साथ पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के इलेक्शन की कैंपेन और पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के सदर की हैसियत से अपने साथियों में से मैंने ये जाना कि किसी नौजवान को इस दफा मौका दिया जाए। खुदा की कसम हम में से कोई एक साथी भी इस बात के लिए आमादा ना था। ख्वाहिश ये थी, सोचा ये था कि कोई नौजवान जिसको हम तामीर करें, जिसको इस बात के रास्ते की तरफ लेके जाएं और वो अपने ज्यादा से ज्यादा तवानाई वाले माहो साल पाकिस्तान कम्युनिटी की इज्जत के लिए, आबरू के लिए, रहनुमाई के लिए ऐसे मामलात, ऐसे इक़दाम करे जो नौजवान कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि पाकिस्तान कम्युनिटी के इलेक्शन के लिए कोई ऐसा पाकीज़ा और नौजवान शख्स आगे नहीं आया, तो तब हम सब ने फैसला किया, मैंने फैसला किया कि किसी पाकीज़ा, मुत्तकी, नमाजी, परहेजगार, बेदाग, जुर्रत ईमान वाले किसी शख्स को इलेक्शन के लिए, इशार के लिए, कुर्बानी के लिए, अपने भाइयों की आवाज सुनने के लिए पेश किया जाए। तो मैं आपसे भी इस बात का मुतमन्नी हूं कि मैं जिस तरह इस शख्स को जानता हूं जिसका नाम मलिक अब्दुल मजीद है, आप भी यकीनन उसको जानते हैं। मैं गवाही देता हूं खुले आसमान तले, अल्लाह की कसम, मैं इस शख्स को एक अच्छा मुत्तकी और परहेजगार, बेदाग इंसान के तौर पे जानता हूं। आज के मजमे में आपकी आमद पर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप में से कोई फर्द अगर मलिक अब्दुल मजीद में कोई खामी महसूस करता है, कोई ऐसा दाग महसूस करता है, तो पहले तो हम सब वो दाग दूर करेंगे। और एक पाकीज़ा ही शख्स का ये हक है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। पाकिस्तान यूनान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर, आज ईद मिलन पार्टी के लिए सबको इनवाइट किया गया है, लेकिन क्योंकि ये एक पाकिस्तान कमेटी का एक बहुत ही अहम मसला है और हर जगह पे इसको उजागर करना हमारा फ़र्ज़ है। जैसा कि सदर साहब ने कहा, जो अभी इस वक्त मौजूदा सदर है जावेद सरमाई साहब ने, कि किसी भी कौम को या कौम की तकदीर बदलने के लिए यकजहती बहुत ज़रूरी होती है और यकजहती उस वक्त मुमकिन होती है जब रिटर्न हो। यहाँ पे माशाल्लाह 70 से 90 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं, लेकिन कागजात अगर हम किसी के गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस को कागजात शो करें, अगर वो कहेंगे हम शो करें, तो मेरे ख्याल में गिनती के लोग होते हैं। ये हम तमाम पाकिस्तानी भाई जो ग्रीस में रोज़गार कमाने आए हैं, उन्हें ये भी एहसास होना चाहिए कि यहाँ के कुछ सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम को भी फॉलो करना है अपनी इज्जत के लिए, अपने वक़ार के लिए, और हर लिहाज से अपने वक़ार के लिए दुनिया की जो भी जितनी भी कौमें बनी है या मुल्क बना है या जो भी उसके डिमांड्स पूरे हुए हैं, वो उस वक्त होती है जब उनकी अक्सरियत हो। और आपको अपनी अक्सरियत जो है वो शो करना है। पहले पिछले 11 साल में जो कुछ हुआ है, जिस तरह इलेक्शन हुए हैं, जैसे भी हुआ है, वो एक गैर कानूनी हिस्सा था। अगर वाकई कानून को मद्देनज़र रखें तो सबसे पहले यहाँ का जो कानून कहता है कि वो मेंबरशिप करें। ग्रीस में जितनी भी गैर मुल्की तंजीमें हैं वो सब आज कामयाबी से जो हमकिनार हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो मेंबरशिप पे ज़्यादा जोर देते हैं, उनकी रुकनीत साज़ी ज़्यादा होती है उनकी बात। जबकि इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इस वक्त ज़्यादा जो है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी में जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीस में मौजूद हैं। और मैं फिर जो एक दफ़ा ज़ोर लगाता हूँ, इस बात पर जोर देता हूँ कि मेंबरशिप करें। इसी में आप सबकी भलाई है। अगर कोई कहता है ना कि 2 यूरो लेके वो क्या करेंगे, पता नहीं कौन खाएगा नहीं खाएगा, ये सब एक वहम है। और बड़ी वैसे हैरानगी होती है कि 2 यूरो पे लोग शक करते हैं कि 2 यूरो हमारा ज़ाया हो जाएगा।
دنیا کی کوئی بھی تقدیر ہے, کوئی بھی قوم ہے, کوئی بھی تنظیم ہے, وہ بغیر فنڈ کا نہیں چلتا. یہ بات سب کو پتہ ہے. مسجد ہے تو مسجد میں بھی چندے کے ذریعے چندے کے بل بوتے مساجد بھی چلتے ہیں. اگر لوگ یہ سوچیں کہ نہیں جی وہاں چندہ بھی نہ دو تو مسجد بھی کچھ دن بعد بند ہو جائے گا. اسی طرح دنیا کا سارا نظام ہے وہ جو ہے فنڈ کے بغیر نہیں چلتا. اور آج جو ہمارا یہ حال ہے وہ اس کا قصوروار ہم خود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے ریٹرن ملنا چاہیے. بچپن سے کتابوں میں یہ پڑھتے ہوئے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. وہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال تاکہ نیکی کرنے کے بعد بندہ اس کا جو بدلہ نہ مانگے, وہ کسی سے اس کا بدلہ خدا خود دے گا اس بندے کو جو بندے نے نیکی کی ہے. 9 ستمبر جو الیکشن کا دن مقرر کیا گیا ہے ابھی تک حتمی ہے. سیدھی اور صاف بات ہے بھائی, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جو ممبرشپ لے گا وہی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. یہ بھی بات حتمی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ صرف اب جو ہے میرے خیال میں صرف 19 دن رہ گئے ہیں الیکشن کو ہونے میں. اور میں دعا گو ہوں سب سے, کوشش بھی ہماری ہے کہ لوگ اپنے اپنے جو بھی پاکستانی بھائی یہاں پہ آپ جو یہاں موجود ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں ان سب کو یہ پیغام پہنچائیں کہ جی ممبرشپ لو اور ایک اچھے لیڈر کو سامنے لائیں تاکہ گریس میں بسنے والے پاکستانی اور قوم جو ہے جو تقدیر ہے وہ بدلے. آج جو یہ ہماری حالت ہے یہاں پہ گریس میں, اتنی بڑی کمیٹی ہونے کے باوجود میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے. اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں. لیکن یہ بات ہر عوام کو سمجھ میں نہیں آتی. بات ممبرشپ کے لیے ہم جگہ جگہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 2 یورو کا فیس کے نام سن کے ان کو بخار آ جاتا ہے. میں نے کہا یار 2 یورو, کوئی بھی نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2 یورو کم سے کم ممبرشپ کا فارم رکھا گیا ہے تاکہ یہ جو پیسے ہیں وہ آپ پہ ہی استعمال ہوں گے. اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے آڈٹ کمیٹی کے بھی بندوبست کیا ہے تاکہ بالکل صاف شفاف طریقے سے یہ پیسہ آپ کے ہی فلاح پہ استعمال کیا جائے. کوئی بھی اس میں دھاندلی نہ ہو. کوئی بندہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ ہم نے جو عوام نے جو پیسے دیے ہیں وہ کسی غلط جگہ استعمال ہوا ہے. اس بات کا یقین دہانی میں ایز اے سپریم کونسل کا چیئرمین امتیاز احمد جعفری کو بات ہے. اس بار جب الیکشن ہوں گے تو اس میں 5 سے 3 یا 5 بندوں کا جو آڈٹ کمیٹی کا جو اس کے بھی الیکشنز ہوں گے. اس کو بھی آپ نے چننا ہے جو اس صدر کے ساتھ اگلے 3 سال تک ساتھ چلے گا تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو کہ آڈٹ کمیٹی صدر نے خود بنایا ہے. آپ ہی نے چننا ہے اس بندے کو بھی جو ان کا احتساب کرے گا. جو اگر کسی صدر سے کوئی شکایت ہو عوام وہ جو آڈٹ کمیٹی بنے گی اس کو آپ کمپلین لکھوا سکتے ہیں کہ صدر صاحب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سسٹم کے اندر ہم آئے اور انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہم سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اسی کے ساتھ میں سب سے زیادہ پاکستان پائندہ باد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کی اس عید ملن پارٹی میں دور دراز سے آنے والے معزز مہمانوں کو میں دل کی تھا گرانی سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اس توقع کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ملک صاحب کی ریکویسٹ پہ ملک صاحب کی خواہش پہ یہاں حاضری دی, آپ اسی لگن محنت اور جستجو سے پاکستان کمیونٹی کی ممبر سازی میں بھی ضرور بر ضرور اپنی شمولیت اختیار کریں گے کیونکہ پاکستان کمیونٹی اتحاد ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستانیوں کے وقار, پاکستانیوں کے عزت اور پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے. عید الفطر کے اس موقع پر ہمارے درینہ ساتھی اور بھائی ملک عبد المجید صاحب نے حسب روایت آج یہ کٹ کر کے اپنے صحیح سیال کوٹی ہونے کا ثبوت جو ہے وہ دے دیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے ہمت اور حوصلہ دے اور یہ جو مہمان نوازی ہے یہ یونان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے باقی تمام یورپین ممالک سے, لیکن ان میں بھی چند شخصیات کا خاصہ ہے یہ جن میں میں سمجھتا ہوں کہ ملک عبد المجید صاحب سر فہرست میرے لحاظ سے آتے ہیں. میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور
आज के क्योंकि ये ईद मिलन पार्टी जो मुझे दावत है, मुझे इतला है, वो ईद मिलन पार्टी है, उस हवाले से चंद गुजारिशात सिर्फ करके इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी बीमारी के गुज़श्ता माह जो मैं हॉस्पिटल में था, दिल का ऑपरेशन था, वो अल्लाह ताला की करम नवाजी से और आप सब की दुआओं के सदके मुझे सुरखरू किया और आपके सामने हूँ। मेरी सिर्फ बिस्तर पर यही दुआ थी, शब मेराज थी। मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की कि एक तो ईमान की सलामती देना और आखिरी सांस तक अपने इन भाइयों की बेलौस खिदमत खल्क करने की तौफीक अता फरमाना। लेकिन हितात नां दी चीज़ को नहीं है। जिस वक्त इलैक्शन होंदा गा, सारे इलैक्शन तो दूसरे दिन अपनी अपनी अलग जमात खड़ी कर लेते हैं। सब तो ज़्यादा जड़ा नुकसान है पाकिस्तान कम्युनिटी हितात पाकिस्तानियों नूं, यानी कि ये जड़े सियासी जड़े ने पहुँचाते जी अपनी अलग जमात बनाते हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि सुप्रीम कौंसल नूं भी चाहिए कि जेड़े जो उस तो पहला जो कुछ हो चुके हैं उसनूं खत्म करदियां कोई भी सियासी कैंडीडेट अपने दिल नाल हार अपनी तस्लीम करे और कहे कि मैं भी पाकिस्तान कम्युनिटी हितात का मैंबर हाँ, आया कि नहीं कि मेरी कोई वक्री जमात है। दूसरी जिहड़ी गल है हकूक और फराइज की, वो यह है कि असी अपने फराइज तो मंगने लेकिन हकूक तो दूर नसने। सानू अपने जिहड़े 2 यूरो कोई मैनी नहीं रखते, 2 यूरो भी देने चाहिए। इस वास्ते कि कोई भी देखो जिस वक्त असी खुद करप्शन की राह जिहड़ी है ना वो असी बना के देनी है सियासियों नूं, तो उस बाद असी किस तरह फिर उन्होंने रोकांगे। कोई भी जिहड़ा कोई सदर कम्युनिटी का मुंतखब होकर आउंदा है उसकी जमात होए कम्युनिटी उस है कि विद पे उन्होंने दी जाए, जी पे उन्होंने जी है ना तां जे महीने नाल उन्हां नाल भी पेट लगे है जी, वो अपना गुजारा बीवी बच्चों का गुजारा कर सकन। आया कि उन्हीं कि किसी को कार्ड बनवा के देना उहदे पैसे रख लैन, किसी नाल थाने जाण उहदे पैसे रख लैन, या किसी नाल अदालतां में जाण उधरों पैसे रख लैन। एक करप्शन वाला सिलसिला भी बंद होना चाहिए गा। और देखो असी सब तो ज़्यादा साढ़े वास्ते असी मुसलमान हाँ कि जेडे मुसलमान जितने भी मस्जिद में जी खिदमत करते हैं इमाम साहब, कोई देखे दे कदे आए तो कोई इमाम साहब बगैर पैसों तो मस्जिद की खिदमत करते होण, कोई जमात अल्लाह अल्लाह रसूल दा नाम कहते होण और सानू तबलीग देंदे होण, उन्हां नाल भी पेट है। इस तरह सानू भी चाहिए है जेडे सियासी इन्हां नू मतलब कि जेड़ा भी सदर बना और उस सदर नू एक पे दी जाए, पे तो बाद मतलब कि वो तो जो काम करो वो काम तो उस बाद नज़र रखी जाए पर उसनू असी पूछी बरकात हो। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मलक मजीद साहब का कि जिन्होंने ईद मिलन पार्टी के बहाने से आज अपनी भरपूर क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है और सबको ये दिखाया है कि देख लें गुज़िश्ता कई सालों से मैंने सिर्फ अपने कारोबार ही को तरक्की नहीं की बल्कि मैंने अपने हल्का अहबाब में भी अच्छा खासा इजाफा कर लिया है। माशाअल्लाह हम उनकी इस कोशिश पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और आप सब के लिए ये गुजारिश है कि मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बेदारी शऊर का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है। हमारा काम है एक दर्द दिल, एक सोच, एक फिक्र आपको देना। आप उस पर किस हद तक अमल करते हैं, किस हद तक अमल नहीं करते, ये आप पर मुनहसर है। जहाँ तक यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी कौम का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे इनफरादी मसाइल थे आज वो इज्तिमाई शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी को कायम हुए 11 साल गुजर चुके हैं। 11 साल पहले मालिक और आजर के दरमियान प्रॉब्लम थी कि आजर को जो मालिक था, मजदूर का जो मालिक है, वो उसे मजदूरी नहीं दे रहा था, उसके हकूक नहीं दे रहा था। खुदा न ख्वास्ता किसी की डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी का मसला था, या दीगर कोई हादसा पेश आ जाए, इस किस्म का मामला था। यहाँ पर देश में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। तो कोई ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए कि किसी भी तकलीफ और मुसीबत की सूरत में जिसका दरवाज़ा खटखटाया जा सके और किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनफरादी मसाइल तो मौजूद हैं, लेकिन इनफरादी मसाइल अब इज्तिमाई शक्ल इख्तियार कर चुके हैं
اور گزشتہ کم و بیش 1.5 سال سے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں پر ذاتی طور پر ان پر حملے ہو رہے ہیں، علیحدگی میں بھی گھروں پر بھی حملے ہو رہے ہیں پاکستانیوں کے. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی حرمت اور ہمارا دین بھی محفوظ نہیں ہے. اور اب ان کے حوصلے اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کہیں مسجدوں کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں شان رسالت مآب میں گستاخی کی جا رہی ہے، چاہے وہ تحریری شکل میں ہے، چاہے وہ پمفلٹ کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے اتحاد کا نعرہ تو ہر کوئی لگاتا ہے، لیکن اتحاد کے لیے عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا. اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ اتحاد کے لیے عملی قدم عوام نے اٹھانا ہے. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਭਾਈ ਜੀ. ਜਿਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਈਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਈਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆ ਰਵੇ. ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਾਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ. ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ. ਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਲੰਮ ਢੀਂਗ ਟਾਂਗ ਲੰਮ ਢੂੰਗ ਟਾਂਗ ਲੰਮ ਢੀਂਗ ਤੇ ਲੋਟੇ, ਲੰਮ ਢੀਂਗ ਟਾਂਗ ਲੰਮ ਢੂੰਗ ਟਾਂਗ ਲੰਮ ਢੀਂਗ ਤੇ ਲੋਟੇ, ਲੰਮ ਢੀਂਗ ਟਾਂग ਲੰਮ ਢੂੰਗ ਟਾਂग ਲੰਮ ਢੀਂग ਤੇ ਲੋਟੇ. पेश करता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तानी बरादरी को यहाँ पर जमा करके एक मेहमान नवाजी की पुरानी रवायत को कायम रखा, ईद मिलन पार्टी के नाम पर जमा किया. बहुत सी बातें हो चुकी हैं और तकरीबन ज़रूरी बातें सारी ही हो चुकी हैं, और मैं अगर उन बातों को दोबारा दोहराऊं या मेरे बाद आने वाला कोई मुकर्रर उन बातों को दोहराए तो वो वक्त का ज़िया होगा. लेकिन सिर्फ 2 बातें वो हैं कि जिनको जितनी बार भी दोहराया जाए उनका हक अदा ना होगा. जितनी बार भी दोहराया जाए और याद दिलाई जाए उनका हक अदा नहीं होगा. और वो सिर्फ 2 ही बातें हैं. पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के इलेक्शन सर पर आ पहुंचे और उसमें आपने अक्ले सलीम से काम लेना है. अक्ले सलीम पाई है, कुछ काम कीजिए. अक्ले सलीम पाई है, कुछ काम कीजिए. अच्छे बुरे को देखिए फिर वोट दीजिए. तो आपने वो एक छोटी सी जो पर्ची डालनी है वो देखने में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा होगा, लेकिन हकीकत में वो आपका ज़मीर होगा, वो आपका ईमान होगा, वो आपकी कुव्वत होगी. वो आपका कागज का एक छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तानी बरादरी को बड़ा मुमताज़ और बुलंद मुकाम भी दिलवा सकता है. और आपका वो एक कागज का छोटा सा टुकड़ा अगर आपने उसको गलत जगह पर इस्तेमाल कर दिया तो वो पाकिस्तानी कौम की मजीद बर्बादी और तबाही का बायस भी बन सकता है. इसलिए आपने वोट देते वक्त देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसको मुंतखब कर रहा हूं. कहीं मैं ऐसे शख्स को मुंतखब तो नहीं कर रहा कि जिससे मेरे वतन का मोराल सिर्फ रब का, और आज आंच भी उसी नाम पर आई है और हमें सदा दे रही है. मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को क्या उस नाम की इज्जत को बचाने के लिए मैदान में निकलो. अल्लामा शहबाज सिद्दीकी साहब, आपने सब कुछ कह दिया. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लब्बाइक, हम अपने नबी की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाजिर हैं. सब कहो लब्बाइक. हम अपने कुरान की नामूस की हिफाजत के लिए हाजिर हैं. आप यहां से वापस जाने की बात करते हैं, हम अपनी जाने देने के लिए तैयार हैं. और हम एहतजाज 24 तारीख को नहीं करेंगे, हम अभी एहतजाज करेंगे. मैं चाहूंगा
कि सब खड़े होकर लानत भेजें उन लानतियों पर जिन्होंने हमारे दीन को ललकारा है। लानत लानत लानत। और हम लानत भेजते हैं जर्मन की उस अदालत पर भी जिसने हमारे नबी के खिलाफ तौहीन करने की इजाजत दी। लानत लानत लानत। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मैं एक नारा लगाऊंगा, इसी तरह खड़े रहें। मैं कहूंगा लब्बैक लब्बैक, आपने कहना है या रसूल या रसूल। लब्बैक 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 लब्बैक। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो एथेंस से मुख्तलिफ इलाकों से जो म्यूज़ियम में मान आए हैं, उन सब का मैं दिल की तह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और ईद मुबारक कहता हूँ। जैसा कि शफीक सभी ने डिटेल से बता दिया है, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जैसे कि शफीक अवान साहब बता रहे थे, मैं थोड़ा सा उससे आगे जाना चाहता हूँ। ये जो सदारत का जो मामला चल रहा है, जो ग्रीस में जो भी आदमी सदर बनेगा, जिसको भी अल्लाह तौफीक देगा, उसकी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि वो अकेला सदर होगा। जितने लोग यहाँ पे, जो लोग उसको वोट देंगे, जितने वोटों से बनेगा, जितना वोट कास्ट होगा, वो सभी समझे कि वो सदर ही हैं, क्योंकि उन सभी लोगों का हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच सकता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ अख्तियारात जो हैं मुख्तलिफ लोगों के पास ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जितनी भी ज़ैली कमेटियाँ होंगी मुख्तलिफ इलाकों में, जितने पोलिंग होंगे, इतनी ही इससे शायद ज़्यादा ज़ैली कमेटी बनाई जाएंगी। ये मेरा मंशूर है। और टोटल ही अख्तियारात उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जो कि लोगों के करीब होंगे, वो लोग, ज़ैली कमेटियाँ इलाका वाइज होंगी, वो लोग उनके करीब होंगे। जो भी मसला मसाइल होगा वो चेक किया करेंगे, वो उन तक पहुंचा करेंगे। मेंबर साजी जो होगी, वो जो इकट्ठा पैसा इकट्ठा होगा, एक एक यूरो जो फंड इकट्ठा होगा, वो फंड टोटल ही ज़ैली कमेटियों के पास रहेगा। एग्जेक्टिव के पास वो पैसा उस वक्त जाएगा जब एग्जेक्टिव को जरूरत होगी। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या मौला, हमारा आना बैठना उठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमूज़ की तहफ़्फ़ुज़ करने की हम सब को जुर्रत, हिम्मत और ताकत अता फरमा। या अल्लाह, हम सब को दीन इस्लाम के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे रहनुमाओं को सियासी हों, समाजी हों, मजहबी हों, मौलवी हो, पीर हो, मुर्शद हो, हर एक को उसी तर्ज पर काम करने की तौफीक अता फरमा जिस तरह के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने किया। और हम सब को सहाबा की तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाला बना। हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, हम सब की तमाम ज़रूरियात को अपनी तरफ से पूरा फरमा। हमको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची और अमली मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। उठना बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, जो दोस्त आए हैं उन तमाम दोस्तों का, और जो नहीं आ सके उनको अपनी तरफ से उनके दिलों को फेर कर 24 तारीख को या अल्लाह एथेंस के अंदर पहुंचाकर हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ने की जो पुरअमन होगी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को दीन इस्लाम की तरफ फेर दे, तमाम की तमाम ज़रूरियात को पूरा फरमा। या अल्लाह, हमारे रहबरों रहनुमाओं को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज़ अमल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे हाल पर रहम और करम फरमा। हमारी दुआ को
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से तवस्सुल से जिनके जुल्फों से के सदके से सारी कायनात को तूने बनाया है, या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल मंजूर फरमा, कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक। जवेद भराज साहब ਨੂੰ मैं ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ आप दावत देन खाने दी। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान, हम जिंदा कौम